It's wonderful to have you over here. Let's start with the Rawalpindi Express because Rawalpindi is now the center of all the PSL action and the home team has now returned. और हम कल यही बात कर रहे थे. And of course, before we go any further, हम पहले तो सना के 2 points के लिए पिक लाप कर ले. He got 2, right? Well done. और मैं नहीं जीते ये हम जीते All of us were voting for Islamabad United. Who did you think yesterday कि आज जीतेगा? Quetta Gladi. Really? Simple. Smart. Yeah, because मैं पढ़ा होता है ना, देखा होता है, एनालिसिस किए होते हैं. It's very simple. चलो 263 हो गया. बता देता मुझे. Highest ever total in the history of PSL आज हो गया रावलपिंडी में 263. ऐसा क्या है? पिंडी की विकेट में आज बहुत ट्रू विकेट नजर आया जैसे आज उन्होंने बैटिंग की. क्या कहेंगे आप इस रिकॉर्ड टोटल के लिए जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुली डिफेंड भी किया क्वेटा ने. 263 ऑन द बोर्ड. टॉस किसने जीता? टॉस इस्लामाबाद ने जीता. इस्लामाबाद ने फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा जी आज गेंदबाजी करेंगे पहले. हाँ जी. फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रायली रोसो ने फेंटा लगाया, हसन नवाज ने फेंटा लगाया. फिर उन्होंने कोशिश ये की कि इनको क्लीनर्स तक छोड़ के आए और वो छोड़ के आए. और आई थिंक पहली बार हुआ है कि 200 हुए हैं एक इनिंग्स में. अच्छा, ये पूरी मैनेजमेंट में जो आइंस्टाइन है, मुझे बताओ वो कौन है? पता नहीं कौन सी डाटा ड्रिवन टीम है जिनको ये भी पता था कि पिंडी में अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं आखिरी 5 मैचेस में तो आप मैचेस जीते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये बात पता थी आज. अच्छा जी, तो आज शादाब आया ना? शादाब तो इंजर्ड है बॉस. और सलमान अली आगा? सलमान अली आगा losing his reputation very quickly and rapidly. Yeah. Reason why? Because you know आज तकरीबन 95% of strength के साथ खेले थे. 2-3 changes किए उन्होंने, right? 3 changes, yes. 3 changes. There you go. So 3 changes के साथ I thought that you know कि ये finalist before the finalist खेल रहे हैं. finalist में से एक finalist को ये बताना पड़ेगा कि हम आपकी फैंटी बहुत लगाएंगे. वो इसलिए लगाएंगे because we are the better team now. True. The better team actually scored very heavily today and showed them that you know how we're going to hammer you in times to come. Exactly. I think Hasan Nawaz, I think is a pick of ये सोहेल के साथ काम किया इसने और सोहेल is huge fan of Hasan Nawaz और I think very talented. I mean जितना chanceless innings खेलता जाएगा उतनी maturity नजर आना शुरू हो जाएगी. But I think this guy was amazing. Riley Rousseau is a seasoned campaigner, so we all know that how he's going to hammer you. And one minute they got the chance कि यार कि हमें टॉस जीत के मैं डाल दिया तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आ जाओ, अब आप हम आपके स्लाइस थ्रू करते हैं आराम से. बट मेहरबानी है फिन एलन की जो सना का फेवरेट है वो अभी तक चल नहीं रहा. रन आउट हो गया. अगर वो चल जाता है इस विकेट पे तो ये होना था 360. And there must have been a possibility for that as well. But very quickly, let's take a good look at the match summary as well as of what happened. I think Quetta was off to a very intentful start, and that's exactly what we did, Vishnu. And speaking about Quetta, I think we really need to speak about Saud Shakil's captaincy. But before we say that, I think Finn Allen, it was unfortunate, but other than that, Riley Rousseau making sure that they're going to play all sorts of mind games with the bowlers, and he was top-notch on the crease with 104 of 46 with a strike rate of 226. And then there was Hasan Nawaz, 100 of 45, and that too completing a century on the last delivery of the last over. That's something which is phenomenal. We really need to appreciate. Couldn't really figure out what Islamabad was thinking. Imagine with the new ball, Imad Wasim comes in, and then there was Naseem. And then, long story short, ladies and gentlemen, it was complete dominance by Quetta Gladiator. That too, winning by 109 runs. What a margin this is, especially अगर हम देखें T20 format में. और हम before we go towards, of course, हम क्वेटा की बात तो अभी करेंगे ही in depth. But Sana, what if you look at that Islamabad bowling card and you see all the bowlers that they tried today and you see their economy rates, everybody went for 10 plus runs today. ऐसा लग रहा था कि एक टीम जिन्होंने अपनी बैटिंग डेप्थ को इतना प्रायोरिटाइज ओवर द इयर्स किया है, इस बार इस सीजन में स्पेशली उनकी बॉलिंग की समझ में नहीं आ रही, या मे बी इट्स बिकॉज दे हैव बीन अनफॉर्चुनेट with their injuries. I think injuries ने थोड़ा सा डिस्टर्ब उनको कर दिया ओवरऑल माइंडसेट को, जो एक मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त कैरी कर रहा था. और इनकी बॉलिंग अगर आप देखें हेवीली डिपेंडेंट ऑन जेसन होल्डर नज़र आ रही थी शुरू के मैचेस में. ठीक है, ये रन्स ऑन द बोर्ड कर रहे थे, पर जेसन होल्डर सिंगल हैंडेडली मैचेस में बहुत बड़े बड़े उनके डिफरेंस ला रहे थे. एक वो भी मिसिंग हो गया और शादाब उनके साथ मिडिल ओवर्स में शादाब की जो बॉलिंग थी जहाँ पर वो आके डॉट बॉल्स कर रहे थे और पार्टनरशिप्स तोड़ रहे थे, वो दोनों चीज़ें मिसिंग अब नज़र आ रही हैं. तो वो ऑब्वियसली उसका बाकी बॉलर्स उस तरह से उसको कम बैक नहीं कर सके. बट आई थिंक यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम क्वेटा ऑल्सो. क्वेटा की टीम पिछले
4-5 मैचेस से जिस तरह का मोमेंटम लेके आ रही है, और हम बार बार लीडरशिप की बात करते हैं, सऊद शकील की बात करते हैं, एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं हु वांट्स टू डिलीवर, सर विवियन रिचर्ड उनके साथ हैं, आपको वो एक पूरा एनवायरनमेंट नजर आता है, तो दे लुक हंग्री, दे लुक के they want to have an impact and on, they've qualified for the playoffs for the first time since 2019, so and they become the first team to qualify and by the huge margin. अब आप ये टॉप 2 में आराम से फिनिश कर सकते हैं, और इस्लामाबाद को डिथ्रोन एक तरह से कर दिया एट द टॉप ऑफ द टेबल, और 100 रन के मार्जिन से अब फिर बहुत चांस खुल गया लाहौर का और बाकी टीम्स का. एग्जैक्टली एंड मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड सर्टनली विल फिगर आउट यू नो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. सबसे पहली जो बात करने वाली है वो ये है कि पिच रिपोर्ट बताती है कि यार इट्स अ बैटिंग पिच. यू नो मैं अगर सोहेल भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. सोहेल भाई, हाउ डू यू सी दैट फॉर सलमान अली आगा टॉस जीते हैं और खुद से कहते हैं कि भाई आप आए और यू नो टेक अस टू द क्लीनर्स. मतलब पिच रिपोर्ट बता रही है, यू नो डाटा ड्रिवन टीम है वहां पे. जिन 5 टीमों ने जो जीती हैं अभी लास्ट 5 गेम्स, वो पहले बल्लेबाजी करके जीती हैं. देखिए, सलमान अली आगा का अकेले का डिसीजन तो नहीं होगा. ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इस तरह के जो डिसीजन होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11 या टॉस जीत के आपने या क्या करना है, तो ये सारी एज ए होल मैनेजमेंट करती है. मेनली कैप्टन एंड कोच डिसाइड करते हैं. तो ऑब्वियसली एज यू सेड के 5 मैचेस पिछले रिकॉर्ड दिखा रहा था कि वो जो टीम टॉस जीत के जिसने बैटिंग की है वो जीते हैं. तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइनअप जिस तरह की है कि दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट कपल, नॉट कपल बल्कि 3-4 मैचेस से वो दे आर स्ट्रगलिंग. आज भी उनके जो पिछले मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग जिन्होंने की थी सलमान अरशाद, आई थिंक ही गॉट इंजर्ड. मतलब डेथ में अगर मैं कहूँ कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है तो वो सलमान अरशाद है. वो कैन नेल हिज यॉर्कर्स, कैन बॉल स्लो वन, स्लो बम्पर्स. तो उनका बाहर होना भी ऑब्वियसली इनके लिए एक सेटबैक था. तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग. ऐसी पिच पे जहाँ पे आपको पता है कि 200 होना ही होना होता है, तो आप whenever runs on the board ना, जैसा मर्जी पिच हो, आप चेज कर रहे होते हैं ना, तो runs on the board always difficult. आपको एक प्रेशर आता ही है कि 10-11 रन्स एज ए ओपनर जब आप जाते हो, और 10-11 रन्स आपको पहले ओवर से फ्रॉम ओवर नंबर 1 till 20th आपको माइंड में होता है कि मैंने चेज करने, तो मुश्किल हो जाता है. तो ऑब्वियसली आई नो कि अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या लॉजिक थी उनके पीछे. बॉलिंग देखें क्वेटा की, आमिर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, Sambas were 2 for 2 in the first over. He got those 2 important breakthroughs in that first over. What is Amir doing this time around that you think is putting him above all of the other bowlers, especially in that initial phase of the game? Skills, using his brain, reading batsman. अगर आप देखें कि आज वो जब बॉलिंग करने आए पहले ओवर के बाद, he straight away went around the stump, और उसको पता है कि सलमान अली आगा एंड वो जो शहजाद, he was trying to hit इनसाइड आउट, और उनका बल्ला बड़ा अच्छा खुलता है टुवर्ड्स पॉइंट एंड कवर. तो उन्होंने वो ही वाज टकिंग हिम इन स्विंग कर रहे थे राउंड द स्टंप. तो दैट मीन्स कि वो जो मैं बात करता हूँ ना कि एज ए इंडिविजुअल आप अपना प्लान बना के आते हैं, आप सोचते हैं कि किस बैटर के अगेंस्ट मैंने कैसी बॉलिंग करनी है. तो डिफरेंस यही है कि वो is utilizing his experience, उसके पास जो skills हैं, and then mainly again I will say कि वो अपना brain बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. Exactly, but you know overall Islamabad United certainly looked baffled as well. You know, I'm going to move on to Shoaib bhai over here. Shoaib bhai, now imagine के 7 bowlers आज वो utilize करते हैं. Islamabad United के बारे में जो narrative build हुआ था वो ये हुआ था कि उनके पास हर occasion के लिए आमरी है. 12वें ओवर में वो छठा बॉलर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन अ T20 गेम. हाउ डू यू सी them strategizing against Quetta Gladiators? I think they are exhibiting their characters basically. I think the one thing they have decoded one thing is that you know कि हमें अपनी बॉलिंग कैसे ठीक करनी है. ये वाइट टीम है जो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में आके अपने बॉलिंग फ़हीम अशरफ के आने से इन्हें अपनी बॉलिंग को बिल्कुल सेटल डाउन कर लिया. इब्रार पहले ही था, वसीम जूनियर और ये अपना लड़का आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड. जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से. नहीं मैं सो स्टक आमिर सर, मैं नहीं पहले मुझे जान दिया. जी जरूर यार, मैं ये सोच रहा था यार कि फ़हीम अशरफ के आने से सारे मुझे देख रहे क्या बात है. दूसरा वसीम जूनियर के आने से 2 चेंजेस की. ये सना और सोहेल लगे हुए थे कि यार ये जो पार्टनरशिप है मिसिंग है बीच में. वो जब पूरी हुई उनकी बॉलिंग कमाल होगी. और इधर जाते हैं जब हम इस तरह, तो जैसे सना ने पॉइंट आउट किया ना कि यार अगर आप सारी बॉलिंग रिलाई जेसन होल्डर पे कर रहे हो और उधर आमिर पे कर रहे हो, बिल्कुल, तो फर्क तो साफ जाहिर है ना यार. ट्रू, एग्जैक्टली दैट, तो एग्जैक्टली. बट वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द गाय इज नॉट
नसीम शाह वर्सेस चले, आमिर कर लेते हैं। आप किसको पिक करेंगे? सारस बुश, आमिर को पिक करेंगे। अमाद वसीम, I mean he's great, you know. Jason Holder compared to Fahim Ashraf, अब आप देख लें। इधर तो जेसन होल्डर बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट था आज। हाँ, अनफॉर्चुनेट था। तो Salman Aga is chipping in. I mean Shahzad is chipping in. I think, to be honest, I think that it looks a far better team in the bowling units when it comes to Quetta. Is this a valid excuse कह लें या reason justification कि आपके players को niggles हो रहे हैं, injuries हो रही है? क्योंकि आज सलमान ने फिर से ये बात की है कि हम मजबूर हैं चेंजेस करने पे, and it's because हम अनफॉर्चुनेट रहे हैं. Is that a mindset that Islamabad have right now? देखिए अब जो वो चेंजेस कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें इंजरीज का दखल है. शुरू में 1-2 मैचेस में अननेसेसरी भी चेंज हुआ जिस वक्त हमने देखा कि बिला वजह रेस्ट दिया गया. बट अब जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक हो गया है, जो शोएब भाई भी बॉलिंग की बात करते हैं कि शादाब एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर, ठीक है वो खेलते एज एन ऑलराउंडर हैं, पर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑपरेट कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के लिए. तो वो एक स्पिनर इनसे चला गया. अब आपके पास पार्ट टाइम सलमान अली आगा उनको फिल करना चाह रहे हैं, और नवाज खेल रहे हैं बट उतनी ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने की नहीं है अभी तक. इमाद आप एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास है. तो आई थिंक अब जो चेंजेस हो रही हैं वो डेफिनेटली इंजरीज की वजह से हो रही हैं, पर उससे पहले ये स्टार्ट कर चुके थे चेंजेस करना. तो उसको आपको ओन अप करना पड़ेगा जहाँ से इनकी विनिंग स्ट्रीक टूटी है वहाँ पर. और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वेटा ऑब्वियसली वो एक मोमेंटम में आ गए हैं. उन्होंने जब चेंजेस किए, MVP ने लगता है रात का हमारा परसों का शो देखा and he got that extra motivation. नहीं, मैं आपको बताऊं that he needed. Riley Russo, let's take a look at his innings today. I think Riley Russo की अगर पिछले आप मैच को भी देखें ना, he looked so hungry. वो रन आउट हुए and he was striking the ball so well, और उसके बाद वो इतने डिसअपॉइंटेड हुए आउट होने के बाद. तो वहाँ से मुझे नजर आया कि अगले कुछ मैचेस में 1-2 मैचेस में से किसी में भी ही विल परफॉर्म, बिकॉज